So this is the code. Here the string is this, having index number 0 to 11. These are the blank spaces, 2 blank spaces between AA and RR and 2 blank spaces between RR and YY. The target of the code is to remove the extra blank spaces. That means after the execution of the code, there will be only one blank space between these two words and one blank space these two words. As it is already one, so nothing will be removed from here. Now let's start a code for this one. Opening of the file, first file in the read mode and another in the write mode, temporary mode, because we have to delete the consecutive spaces from the file. So deletion, that means two files we have to open. Reading of line, it will pick the complete line and store it in X. Now counter variable to check the index number, and this is an empty variable here to store the string. As you know, the strings are immutable data types, we cannot make changes in that one, so we are taking a separate variable for that one. Now let's start the condition. The value of C is 0 right now. Okay, here we are checking that the y and length minus 1 is what? As the length, when you will calculate, it will be 12. 12 minus 1, it will be 11. Why the length is 12? Because the length start counting from 1. So it will be 12 minus 1, it will be 11. Here it will be 11. We are checking that C is less than equals to length minus 1. C is 0. 0 is less than equals to 11. Condition satisfied. Here we are checking if the 0th index number of X is equals to space. As you can see, it is not a space, it is A. So condition is false and the control will directly come in elif. Here again we are checking if the 0th index number of X is not equals to space. As it is not equals to space, so the ST would add a value here. The ST is what initially it is empty. Now A will get added in this one. Okay, now after this the loop will come on which statement? After implementing this step, adding the A in the ST, it will come here. Now the value of C would become as 1. The new value of C is 1. Okay, now again we are moving for the loop. We are checking 1 is less than equals to 11. Condition is satisfied. Again we are checking if the one index number of X is equals to space. As you can see, it is not equals to space. Again a condition is false. Again we are coming here and we are checking if the one index number of C is not equals to space. So condition is satisfied. As it is not equals to space, we would come again here and we would add the next A into the string. So now the string will be ST. Here we are writing ST plus this one. ST is already A, this is A, so the final string will be A. Okay, now again the counter value will increase and the new variable for the C is 2. The new value of C is 2. As after adding, it is coming on this step. Again we are moving up and we are checking that 2 is less than equals to 11. Condition satisfied if the second index number of X is equals to space. As you can see, it is space, and plus 1 is not equals to space, so both are space. Condition is again satisfied. Not equals to space वाली condition satisfied नहीं हो रही है. फिर एलिफ पे जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा if C is not equals to space. As C is 2 इंडेक्स स्पेस नहीं होना चाहिए. अब तो स्पेस है तो यहाँ पे नहीं जाएगा, सीधे यहाँ पे जाएगा और C की वैल्यू बढ़ा के 2 से क्या कर देगा 3. ओके, अगेन इट विल चेक फॉर 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 11. कंडीशन इज सेटिस्फाइड. फिर यहाँ चेक करेंगे इफ X थर्ड इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू स्पेस, तो थर्ड नंबर इज स्पेस, एंड फोर्थ इंडेक्स इज नॉट इक्वल्स टू स्पेस, सो फोर्थ इज नॉट इक्वल्स टू स्पेस. कंडीशन इज सेटिस्फाइड. नाउ अब यहाँ पे आएंगे ST जो है उसको प्लस X का C इंडेक्स, तो X का जो C इंडेक्स है वो हमारा क्या है, यहाँ पे C की वैल्यू क्या है 3. तो X के C इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो इसमें ऐड करेंगे. इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्पेस 1 स्पेस वुड बी देयर, एंड देन C प्लस 1 की भी ऐड कर देंगे. तो C में 3 है, 3 प्लस 1 4 वाला भी डेटा इसके अंदर ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा R. ठीक है, तो जब स्टेप को फॉलो करेगा तो ST से AA ऐड किया, इससे स्पेस ऐड किया और इससे क्या स्पेस ऐड R ऐड किया और ये कंबाइन स्ट्रिंग बन गई AA स्पेस
आर. ओके, दिस इज द स्ट्रिंग राइट नाउ. फिर यहाँ से सीधे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, इस पार्ट पे आएगा. ये सॉरी, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो यहाँ पे जाएगा, लेगा C+1. अब C की वैल्यू 3 से क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी. वाई वी आर यूजिंग दिस स्टेप हेयर C+1, क्योंकि अब हम यहाँ पे थे, इसकी वैल्यू 3 थी ना, और 4 को हम चेक कर चुके थे, तो हम दोबारा 4 को नहीं चेक करेंगे क्योंकि ये हमारे में ऐड हो चुका है. टू स्किप दिस वन वी आर यूजिंग C+1. तो अब देखिए 3 के बाद वो यहाँ से बढ़ के क्या हो गया है, सीधे यहाँ पे इसने 3 को लिया, यहाँ पे क्या हो गया 4. 4 के बाद अब ये यहाँ से कहाँ से आएगा, यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आके C की वैल्यू को क्या कर देगा 5. तो इसका मतलब क्या है कि इसने स्किप कर दिया 2 इंडेक्स नंबर को, जो कि इसे करना था. 4 के बाद सीधे वैल्यू क्या होगी इसकी 5. यहाँ पे हम थे, हमने 2 बार इंक्रीमेंट लिया, एक यहाँ से तो ये 4 हो गया, और एक यहाँ से अब ये 5 हो गया. नेक्स्ट टाइम जो वो चेक करेगा वो किसकी वैल्यू होगी, R की. फिर ये चेक करेगा ऊपर जाके, तो 5 इज़ लेस देन 11, कंडीशन सेटिस्फाई. अब 5th इंडेक्स जो x का है इज़ इक्वल्स टू स्पेस, कंडीशन इज़ फॉल्स. यहाँ पे आएगा 5th इंडेक्स नॉट इक्वल्स टू स्पेस, कंडीशन सेटिस्फाई, और इसको फिर ऐड कर लेगा ST के अंदर. तो द ST इज़ दिस वैल्यू, द करेंट वैल्यू इज़ ऑन द सिस्टम, और इसी में क्या ऐड हो जाएगा, एक R, सॉरी नॉट एट दिस प्लेस, एक R और ऐड हो जाएगा इसके अंदर ऐसे. ठीक है, अब सेम लूप चलता रहेगा. जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई है कंडीशन, ऐसे ही जब यहाँ पर जाएगा तो इट इज़ स्पेस, और ये वाला स्पेस होना चाहिए और ये स्पेस नहीं होना चाहिए, तभी स्पेस ऐड होगा. तो यहाँ पे स्पेस नहीं ऐड होगा. जब यहाँ पे आएगा ये स्पेस है और ये स्पेस नहीं है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन ऐड कर देगा. तो इस तरह से देख सकते हैं कि एक स्पेस या मल्टीपल स्पेस जितने भी हों रिमूव हो जाएंगे और एक ही स्पेस रहेगा. ठीक है, ये पूरा लूप चलेगा. आगे चल के यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से एक ही आपके पास यहाँ पे जो आपका R है इसमें एक स्पेस आएगा, और उसके बाद फिर वो Y और Y को ऐड करेगा. अब जब यहाँ पे जाएंगे, सपोज़ कीजिए, चलिए लूप लगा के दिखाते हैं. अगर मानिए C की वैल्यू 10 है, तो 10 इज़ लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे जाएंगे -1 है ना, तो 11 तक चलना है. 10 इज़ लेस देन इक्वल्स टू दिस, कंडीशन इज सेटिस्फाइड. दिस इज इक्वल्स टू स्पेस, येस 10 वाला स्पेस है, एंड C+1 इज़ नॉट इक्वल्स टू स्पेस. तो नाउ कंडीशन इज सेटिस्फाइड, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू स्पेस. तो ये क्या करेगा, इन सबको ऐड करेगा. मतलब कि ST तो ये है ही आपके पास, ST के बाद क्या ऐड करेगा, x का C मतलब स्पेस, और x का C+1 मतलब h. इस टाइप से ये स्ट्रिंग आपकी पूरी ऐड हो जाएगी. फिर यहाँ से ये चलेगा. 12 - 1 हमने कर लिया था, 11 हो गई थी ये लेंथ. अब यहाँ से जब हम ऊपर जाएंगे, जब हम ऊपर जाएंगे और ये इसको चेक करेगा, इट शुड बी लाइक लेस देन, should be like this, so that the next time when it will be 11, condition will become false.